ਅਗਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मेरी ना वालदा के नाल उहदे नजायज़ तल्लुकात सी। खड़े हुए हैं यहाँ से कुछ गज के फासले पर वो सुमैर नामी शख्स का घर है जहाँ पर ब्लू रंग की टैंकी लगी हुई है। उसने कॉल कर बाऊ असलम को बाहर बुलाया, फिर उस खेतों की तरफ लेके आया और यहाँ पर घात लगाए। जो उमर था जिसने कत्ल किया है, जो अब उसने बता भी दिया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि मैंने कत्ल किया है, उसने यहाँ पर इसको फिर छुरियों के वार से कर दिया। अच्छा, फिर ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਅਡੈਕਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਮਵਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देखें डेली पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, मैं जाए वकूफ़ पे पहुंचा हूं जहां पर असलम को कत्ल किया गया था और ये वही जाए वकूफ़ है जहां पर रात को तकरीबन 10 बजे के करीब उसको छुरियों के वार से कत्ल कर इस जगह फेंका था। यहाँ से उसकी सुबह लाश मिली थी और जो ऐने शाहिद हैं जिन्होंने देखा था उसके बाद 15 पे कॉल भी की थी, वो हमारे साथ हैं और इसी पहली के वो मालिक भी हैं। इनसे पूछते हैं कि वो उस टाइम रात को क्या हुआ और आपने ये जाए वकूफ़ पर जब 15 पे कॉल की तो फिर आपने क्या देखा, ये सारी तफसील इनसे पूछा हमने। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सर की नाम है दादा? ਮਸੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ। अच्छा मसूद साहब, दसो उस टाइम तुसी रात ਨੂੰ ਜਾਏ ਵਕੂਫ ਤੇ ਸੀ 15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਅਡੈਕਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਮਵਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ 9:45 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:30 ਵਜੇ 9:22 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਏ ਵਕੂਫ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੱਟ ਸੀ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ID ਕਾਰਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸਲਮ ਉਰਫ ਬਾਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਾਲਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਪਰਸੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है नाज़रीन, उनके जो भतीजे हैं उनसे बात करेंगे वकार से और इनको जब खबर मिली तो इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और उनसे पूछेंगे कि ये तनाज़ात उमर का और जो असलम है, जो मकतूल है, जो कत्ल किया है जिसने उमर ने, उसके साथ क्या तनाज़ा था सामने? सर दसो की तनाज़ा सी? ਸਰ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 2-3 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜਡ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਮਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੈਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਮੈਰ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾस्ट CDR ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ लड़का पकड़ा गया। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से कुछ गज के फासले पर वो सुमैर नामी शख्स का घर है जहाँ पर ब्लू रंग की टैंकी लगी हुई है। उसने कॉल कर बाऊ असलम को बाहर बुलाया, फिर उस खेतों की तरफ लेके आया और यहाँ पर घात लगाए। जो उमर था जिसने कत्ल किया है, जो अब उसने बता भी दिया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि मैंने कत्ल किया है, उसने यहाँ पर इसको फिर छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। अच्छा, फिर सर हमें कॉल आई है इनके भतीजे की, जिनकी रकबा है, जिनका अदर का, उनके भतीजे की मुझे कॉल आई है। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, सुबह टाइम। तो उन्होंने कहा जी तुम्हारे ना चाचू की ऐसे डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है। तो हम तो ज़ाहिर बात है परेशान हो गए। हम आए हैं, इधर पुलिस भी खड़ी थी, लोग भी खड़े थे, शक्ल से तो नहीं था पहचाने जा रहे। वो ID कार्ड से ही पता चला है जी वो, क्योंकि उससे पहले ना उनका जो छोटा बेटा था वो भी इनके साथ ही पुलिस देख के वैसे ही आया, रैंडमली आया। तो वो वैसे ही आया है, तो वो उसने भी नहीं पहचाना। जब पुलिस ने शनाख्त की ID कार्ड से तभी पता चला, वैसे नहीं तो पता चला। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन अहले इलाका भी मौजूद है। ज़ाहिर बात है जो एक गांव होता है वहाँ पर दूर दूर तक एक दूसरे को जानते हैं। ये शहर तो नहीं है कि साथ वाले घर को साथ के घर का पता नहीं होता। ये गांव है बेसिकली, यहाँ पर दूर दूर तक एक दूसरे को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसके किरदार को भी जानते हैं, वो किस किरदार का मालिक था। ये अहले इलाका से बात करते हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं और पूछेंगे जो सुमैर जिसने कॉल की है और उसने वो कत्ल होते देखा भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मोहल्लेदार हैं? जी भाई। कैसे बहू असलम कैसा था? चाचू था मेरा, बहुत अच्छा था। हम उसके हाथों में बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ ये बहुत बड़ा वक़्वा हो गया। हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, वो जो लड़का है जिसने कॉल कर बहू असलम को बाहर बुलाया था, सुमैर बताया जा नाम उसका, और उसने ये कत्ल होता देखा भी है, पहले वो क्या कहता था कि वहाँ कहाँ खड़ा हूँ मैं? वो पहले कहता था मैं वहाँ पे दूर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। रात का वक़्वा तो वहाँ से कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। बिल्कुल ठीक है, बाद में वो कहता मैं इधर खड़ा हूँ। बाद में वो तीसरा बयान देता है मैं इधर बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ जी, तो वो अपने बयान बदल रहा है बार बार। ठीक है, आप ये समझते हैं कि दोनों ये इकट्ठे थे, बुलाया तो सुमैर ने है ना हमारे चाचू को। हाँ जी, हाँ जी, कोई और भी हो सकता है, हमें अभी तक नहीं पता। अच्छा, आप जा रहे हैं, अब IG साहब को भी मिल के आए हैं, अब SSP ऑफिस को भी गए थे, क्या कहते हैं कि अभी तक 2 लोगों को हिरासत में रखा है? जी सर, अभी ना पहले तो उन्होंने काफ़ी लोगों को रखा था, तकरीबन 35 से 40 लोग। गांव से तो कोई 10-12 लोग पकड़े थे, और बाहर से जो इसकी शनाख्त में पकड़े थे? इसी शनाख्त में, और बाहर से लोग जो 10 से 12 कोई तकरीबन 20-25 लोग बाहर से उन्होंने पकड़े CDR से। उसमें जो ना हक थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। लास्ट में 3 लोग रह गए थे। एक असलम माइया था जो जिसका पहले ये 7 नाम लगा रहे थे, वो ना हक था, उन्होंने वो नहीं उसमें शामिल हुआ। अब 2 रह गए हैं, एक उमर है और एक समैर है। समैर को पुलिस कह रही है जी वो कह रहा मुलव्वस नहीं है, पर वो भी मुलव्वस है। अगर वो हमारा हमदर्द होता हमें आगे बताता। वो अच्छा, उसने कॉल करके बुलाया, अगले दिन भी बताया? बताया नहीं, वो CDR से निकाला है जो लास्ट कॉलें आई हैं, उसने निकाला है कि जी आपने इतनी कॉलें की हैं, उन्हें क्यों बुलाया। फिर जब उसकी तफ्तीश हुई है फिर उसने बताया जी मैं मौके पे मौजूद था। बुलाया भी उसने, पास भी खड़ा था, किसी को बताया भी नहीं। इसका मतलब है कि इसने दोनों मुलव्वस हैं, उमर और सुमैर। इसके अलावा भी कोई हो सकता है मजीद। अच्छा, आपको शक है? शक है, वो सब जानते हैं, वो सेहतमंद वैसे भी ना फिट थे, वो ऐसा कोई मसला नहीं था। वो 1 ही 2 बंदे का काम नहीं है, ये कम से कम कोई 3 से 4 बंदे अगर चलें, 2 भी हैं तो कम से कम उसको ना छोड़ा जाए। अब उसको कह रहे हैं जी अभी सुमैर को वो मुलव्वस नहीं है, पर वो मुलव्वस है। पता नहीं कि उसमें क्या पीछे है, आप समझदार हैं, इस चीज़ को बेहतर समझते हैं।
पर वो भी हमारा मुलजम है। हम इधर एसएसपी दफ्तर, आईजी दफ्तर इसी के लिए जा रहे हैं। सही है नाज़रीन, ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसने पुलिस के साथ बहुत अच्छा ताउन भी कर रही है और बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसने इतराफ़ जुर्म भी अपना कबूल कर लिया है, उमर ने। और सुमैर ने जिसने कॉल कर कर असलम बहू को यहाँ बुलाया, उसको भी सामने तफ्तीश किया जा रहा है। अभी तक बयान यही आया पुलिस का बकौल इनके कि उसको पुलिस कह रही है कि इसका कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन दोनों के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जो इसके पीछे हैं। ये अकेले दो नहीं हो सकते, अगर दो हैं तो पुलिस ने उसको भी कह रहे हैं कि सुमैर को कि इसका कोई रोल नहीं है, उमर का सारा रोल है। लेकिन इन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि और लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाए, सामने तफ्तीश किया जाए। ये कत्ल नहत्ता कत्ल है और पसीन पिंड में ये 15 साल के बाद ऐसा हुआ है। यहाँ पर बहुत अमन हो गया था। ये इलाका वैसे यहाँ से MPA सुहेल शौकत भट्ट साहब जीते हैं, ये उनका अपना इलाका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। नहत्ता शख्स को कत्ल किया है और इसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए। अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनके भतीजे भी मौजूद हैं। जाए वक़ुआ को भी आपको दिखाया कि उस रात को ये यहाँ वाक़या हुआ है। अगर सुमैर को दूर से पता लग रहा है कि ये वो है, बहू है, और उसके साथ उसकी उमर के साथ लड़ाई हो रही थी, वो घर तलाक क्यों नहीं की? और दूर खड़े शख्स को कैसे पता लग गया ये किसकी लड़ाई हो रही है? अंधेरा था। हसन शहबाज को ज़्यादा ने कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।